المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. گزشتہ درس میں ہم نے اس موضوع کے حوالے سے جو ابتدائی بات کی تھی اس میں ہم نے المحکم والمتشابہ یعنی محکم اور متشابہ کے حوالے سے لغوی اور اصطلاحی تعریفات کو دیکھا تھا. یعنی لغت میں یعنی احکام کسے کہا جاتا ہے، تشابہ کسے کہا جاتا ہے، اور محکم سے کیا مراد ہے، متشابہ سے کیا مراد ہے، اس کو ہم نے دیکھا تھا. اس کے علاوہ جو بات میں نے بیان کی تھی کہ ہم محکم اور متشابہ کے حوالے سے جب یعنی قرآن پاک کے حوالے سے جب محکم متشابہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک صورت الاحکام العام التشابہ العام، یعنی ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک نمایاں صفت پورے کے پورے قرآن کی ہے کہ یہ محکم کتاب ہے. اس کے حوالے سے کیا ادلہ ہے ان کا تذکرہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا. اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا کہ قرآن پورا کا پورا متشابہ ہے، یعنی یہ الاحکام العام اور التشابہ العام. تو اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم ٹیکنیکلی اصطلاحی طور پر بات کرتے ہیں کہ قرآن میں محکم کے کیا معنی ہیں اور متشابہ کے کیا معنی ہیں، وہ بنیادی طور پر یعنی سورۃ آل عمران کی آیت سے ماخوذ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یعنی قرآن نے یہ بات خود بیان کی. قرآنی آیات کی تقسیم کو یعنی دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا. ایک تو کہا گیا کہ ہن ام الکتاب یعنی اس میں محکم آیات کو نازل کیا گیا، اور دوسرا واخر متشابہات اور متشابہ آیات ہیں. تو ہم کہیں گے یہ الاحکام الخاص اور التشابہ الخاص ہے. تو اس سے کیا مراد ہے علماء کے نزدیک، محکم کن آیات کو کہا جاتا ہے اور متشابہ کن آیات کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا. تو آج کے درس میں ہم اسی موضوع کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں. تو متشابہ کے حوالے سے بات آئے گی. دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور قرآن میں جو قرآن کے نزول کا جو بنیادی مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت یعنی کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. یا اسی طرح قرآن کی جو صفت بیان کی گئی وہ یہ کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا بلسان عربی مبین، ہم نے اسے واضح عربی زبان میں نازل فرمایا. تو ان اوصاف کو اگر سامنے رکھا جائے اور متشابہ کے یہ معنی لیے جائیں کہ متشابہ وہ آیات ہیں جن کی مراد سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی انسان، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان متشابہ آیات کے نزول کا پھر مقصد کیا تھا. تو متشابہ آیات کے نزول کے حوالے سے، مقصد کے حوالے سے جو علماء کے یہاں اقوال پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تشابہ کو کچھ مزید سمجھیں کہ متشابہ کسے کہا جاتا ہے. ہم کب کہیں گے کہ قرآن کی فلاں آیت متشابہ ہے، تو اس کے حوالے سے ہم آج کے درس میں دیکھیں گے. تو یہاں پر اس سلائیڈ میں جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے وہ ہے اقسام المتشابہ، کہ ایک تو ہم نے
तशाबुह की तारीफ को बयान किया था। अब हम मुतशाबिह की अक़साम को देखेंगे। तो उलमा फरमाते हैं वत्तशाबुह फ़ी बाज़ि आयातिल कुरानिल करीम सलासतु अनवा, कुरान मुक़द्दस की आयात में जो तशाबुह पाया जाता है वो 3 किस्मों में, यानी वो 3 किस्मों में पाया जाता है, या उसकी 3 सूरतें हैं। पहला क्या, अत-तशाबुह मिन जिहतिल लफ्ज़, तशाबुह लफ्ज़ में पाया जाता है। इसकी क्या वज़ाहत है उसकी तरफ मैं इंशाअल्लाह आऊँगा। तशाबुह की दूसरी सूरत क्या होती है कि अत-तशाबुह मिन जिहतिल माना, कि माना में तशाबुह पाया जाता है। और तीसरी सूरत यह है कि अत-तशाबुह मिन जिहतिल लफ्ज़ी वल माना, यानी तशाबुह माना में भी और लफ्ज़ में भी पाया जाता है। इससे क्या मुराद है उसको हम देखेंगे। देखिए, पहली बात जो मैंने बयान की, अत-तशाबुह मिन जिहतिल लफ्ज़, यानी कुरान मुक़द्दस में तशाबुह की एक सूरत ये होती है कि अल्फाज का इस्तेमाल इस सूरत में किया जाता है कि अल्फाज के वो मानी बिल्कुल वाज़ेह, यानी ज़ाहिरन वाज़ेह नहीं होते, लेकिन ये मामला लफ्ज़ का होता है। तो यहां पर देखिए, वो हुआ माकाना खिफ़ाउ मानाहु नाशिअन मिन जिहतिल लफ्ज़ वो हुआ नौआन तशाबुह लफ्ज़ी यरजिउ इलल मुफ़रदात, यानी कुरान के बाज़ अल्फाज में तशाबुह पाया जाता है। तो उसकी एक सूरत यह होती है कि इम्मा लिग़राबतिहा व क़िल्लति इस्तेमालिहा, कि कुरान मुक़द्दस में बाज़ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो उमूमी तौर पर आवाम में यानी मुस्तअमल नहीं होते, लोगों में वो अल्फाज मशहूर नहीं होते या उसका इस्तेमाल कलील होता है। यहाँ पहली बात याद रखें, पूरा का पूरा कुरान अफ़सह है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा फसी अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया है। गराबत के मतलब यहाँ ये नहीं है कि कुरान की फसाहत पर कोई असर आ रहा है। गराबत का मतलब यह है कि अवाम में ये चीज़ यानी मारूफ नहीं होती या लोगों के यहाँ मुस्तामल बाज़ अल्फाज नहीं होते, लेकिन फसीह जो लफ्ज़ उसका होगा कुरान ने उसको इख्तियार किया है। मिसाल के तौर पर सूरत अबस की आयत नंबर 31 में 31 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वफ़ाकिहतन व अब्बा। तो अब्बा के हवाले से मुख्तलिफ मानी बयान किए गए, यहाँ तक कि बाद आसार में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब्बा के माने उन्हें मालूम नहीं थे। तो जहाँ तक इस लफ्ज़ का ताल्लुक है, हम कहेंगे कि यहाँ पर कुरान ने उस लफ्ज़ को इख्तियार किया जो कि लोगों में मारूफ नहीं थे, और मारूफ या किल्लत इस्तेमाल की वजह से इसके माना को समझने में यानी दिक्कत पेश आई। दूसरी सूरत क्या है, सूरत साफ़ात की आयत नंबर यानी 94 में इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे, अव्वाह और हलीम। तो यहां पर देखिए अव्वाह का लफ्ज़ भी ये नादिर है, यानी यूं कहे कि ये फसीह अफसाह लफ्ज़ है, लेकिन अरबों के यहाँ इसका इस्तेमाल निस्बतन कम पाया जाता था। इसी तरह सूरतुल हाक़ा में वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन, तो इन आयात के हवाले से सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनसे मरवी है कि उन्होंने क्या फरमाया, ला अदरी मल अव्वाह व मल ग़िस्लीन, कि मुझे नहीं पता थी कि अव्वाह और ग़िस्लीन के क्या मानी है। या इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से दूसरी रिवायत में मनकूल है कि आपने फरमाया कि मुझे कुरान के इस लफ्ज़ फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, फ़ातिर के मानी मुझे मालूम नहीं थे, यहाँ तक कि मैंने 2 बदवियों को लड़ते हुए देखा और वो एक कुएं के पानी के बारे में बहस कर रहे थे। तो एक ने दूसरे से यानी इस कुएं पर अपना हक जताते हुए क्या कहा, अना फतरतुहा, कि इस कुएं को मैंने बनाया है, इसको शुरू मैंने किया है, या इसको खोद कर इससे पानी मैंने निकाला है। तो फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि इनकी इस बात से मुझे समझ आया फातिर के माने खालिक के होते हैं। तो फातिर का लफ्ज़ फसी अरबी ज़ुबान है, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं था तो इस लफ्ज़ के मानी को मालूम करने के लिए मज़ीद अदिल्ला का सहारा लेना पड़ा, कराइन का सहारा लेना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए जो बात पहले समझा रहा हूँ कि हमने ये बात बयान की कि कुरान में जो तशाबुह पाया जाता है, कभी कभार तशाबुह लफ्ज़ के इस्तेमाल में होता है, और वो किस सूरत में होगा कि ऐसा लफ्ज़ कुरान में मौजूद हो जो कि इस्तेमाल में यानी कम हो या यानी
गरीब, यानी गरीब जिससे लोग उमूमी तौर पर मानूस ना हो। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे यहाँ उलमा ने गरीबुल कुरान के नाम से मुतअद्दिद तसनीफ़ात लिखी हैं, जिनमें कुरान के ऐसे अल्फाज पर बात की गई है जो कि नादिर या किल्लतुल इस्तेमाल, यानी जिनका इस्तेमाल कम होता था। इसी तरह देखिए ये जहाँ तक लफ्ज़ी यानी तशाबुह का ताल्लुक है, कभी कभार ये होता है कि एक ही लफ्ज़ एक से ज़ायद मानी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इश्तिराक पाया जाता है। मिसाल के तौर पर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228, तो ये कहा गया कि इद्दत क्या होगी, सलासता कुरू, 3 कुरू। अब जहाँ तक कुरू का ताल्लुक है तो ये इसका इतलाक हैज़ पर भी होता है और तोहर पर भी होता है, ठीक है। अब लफ्ज़ जब इख्तियार किया गया, ये कुरू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और इसमें एहतिमाल दोनों चीज़ों का है। तो मामला क्या हुआ कि यहाँ पर लफ्ज़ का माना यानी ज़ाहिरन वाज़िह नहीं है। अब इस लफ्ज़ के माना को समझने के लिए मज़ीद अदिल्ला का सहारा चाहिए। तो हम कहेंगे यहाँ पर इश्तिराक लफ्ज़ी की वजह से इस आयत में तशाबुह पैदा हो गया। तो ये पहली क्या थी कि अल्फाज अपनी इनफिरादी सूरत में, देखिए यहां पर अब्बा के माने में मसला है, कुरू के माने में मसला है, ठीक है। अब कभी कभार ये होता है लफ्ज अपने माना में, एक लफ्ज यानी मुफरद की सूरत में माना तो वाज़ेह होता है, लेकिन जब आप उसे किसी तरकीब में डालते हैं, जब आप जुमले की सूरत में उस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर कभी कभार तशाबुह पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि तशाबुह की दूसरी क्या सूरत होती है, यानी लफ्जी तशाबुह की दूसरी सूरत क्या है, तशाबुह लफ्ज़ियुन यरजिउ इला तरकीबी लिल अल्फाजिल जुमल वहिय, यानी क्या है, लफ्जी तशाबुह इस सूरत में जबकि इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किया जाए। तो हम कहते हैं कि इसमें 3 सूरतें हो सकती हैं। एक लिख्तिसारिल कलाम, कि कभी कभार कलाम को मुख्तसर किया जाता है जिसकी वजह से यानी कलाम में तशाबुह हो जाता है। जैसे सूरतुन निसा की आयत नंबर 3 में कहा गया, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा, अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि तुम यतीमों के साथ, यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे, फनकिहु, बस तुम उनके साथ निकाह करो, मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, यानी 2, 3 या 4 से। तो यहां पर देखिए अगर आप आयत को देखेंगे, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीमों के साथ यानी यतीम इन लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं, अदल नहीं कर पाओगे, किस मामले में, कहा गया वल माना अल्ला तुक़सितु फिल यतामा इज़ा तज़व्वजतुमूहुन्ना, यानी शादी के हुकूक अदा करने की सूरत में। तो यहां पर क्या मसला है कि कलाम के इख्तिसार की वजह से तशाबुह पैदा हो गया। दूसरा मसला होता है कभी कभार बस्तुल कलाम, यानी कलाम में इजाफी कुछ अल्फाज पाए जाते हैं। याद रखिए यहां पर जब हम कहते हैं कुरान में इजाफी अल्फाज हैं, तो ये बात, इसका मतलब ये नहीं है कि गैर ज़रूरी अल्फाज है, माज़अल्लाह, कुरान का एक एक लफ्ज़ पुरअज़ माना है, क्योंकि क्या कहा गया, वमा हुआ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुआ बिल हज़्ल, कुरान पूरा का पूरा फैसला कुन कलाम है जिसमें कोई माज़अल्लाह यावगोई नहीं पाई जाती। तो कभी कभार अब क्या होता है, लुगत में एक उसलूब बात का ये होता है कि ऐसे भी बात मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन कुरान में मज़ीद कुछ अल्फाज मानी की इजाफे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कभी कभार तशाबुह पैदा हो जाता है। जैसे कि सूरत शूरा की आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लैसा कमिस्लिही शै। अगर आप देखेंगे यहां पर जो काफ का इस्तेमाल किया गया, हरुफ जर काफ का इस्तेमाल किया गया, अगर इसके बगैर लैसा मिस्लुहु शै ये इस्तेमाल किया जाता तो माना तो फिर भी बज़ाहिर मुकम्मल हो जाता, लेकिन काफ के इजाफे की वजह से इसमें मजीद माना भी दाखिल हो गए। लेकिन काफ का इस्तेमाल अब इस माना को मालूम करने के लिए दिक्का और मजीद शवाहिद, कराइन और अदिल्ला की ज़रूरत पड़ेगी। जो बात मैं समझा रहा हूं कि तशाबुह पाया जाता है कि माना यानी ज़ाहिरन वाज़िह नहीं होता। तो ये क्या हुई, मैंने बयान किया था कि अक़सामुल यानी तशाबुह
3 सूरतें हैं कुरानी आयात में तशाबुह के पाए जाने की। एक सूरत क्या है कि तशाबुह किस में होगा, अत-तशाबुह मिन जिहतिल लफ्ज़, यानी लफ्ज़ के मामले में तशाबुह, लफ्ज़ के इस्तेमाल में तशाबुह होगा। तो उसमें मैंने ये कहा कभी कभार मुफरद लफ्ज़ को ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो नादिर हो या कलील और इस्तेमाल हो, तो उसकी वजह से तशाबुह हो। कभी कभार किसी मालूम लफ्ज़ को इबारत में या जुमले में इस तरीके से तरकीब में इस्तेमाल किया गया कि उसके मानी में तशाबुह पैदा हो सकता है। अब दूसरा है तशाबुह, अत-तशाबुह मिन जिहतिल माना व यतअल्लक़ु हाज़ा अन-नौ' बिल ग़ैबियात। हम कहेंगे कि माना में तशाबुह है, कि माना वाज़ेह नहीं है। देखिए वहां पर लफ्ज़ का मसला था कि लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहां पर अब हकीकत के हवाले से तशाबुह है। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि यानी बाज़ महसूसात, एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं, आप अल्फाज तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी हकीकत से आप कमा हक़्क़ुहु वाकिफ़ नहीं होते। मिसाल के तौर पर जन्नत के बारे में यानी जन्नत के जो औसाफ हैं, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, या सिदरतुल मुंतहा का तज़किरा आया, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा आया। ये लफ्ज़ तो हमें मालूम है लेकिन इसके मानी में क्या है, इसके मानी में तशाबुह है। हमें जन्नत की नेमतों की असल हकीकत मालूम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात पर हम ईमान लाते हैं लेकिन उनकी असल हकीकत से यानी कमा हक़्क़ुहु इंसान इस दुनिया में वाकिफ़ नहीं हो पाता। तो हम कहते हैं कि यानी कभी कभार तशाबुह किस में पाया जाता है, माना में। और तीसरी सूरत क्या होती है, अत-तशाबुह मिन जिहतिल लफ्ज़ वल माना, कि कलाम में तशाबुह लफ्ज़ और माना दोनों यानी सूरतों में पाया जाता हो। और इसकी उलमा ने 5 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म क्या है, अल अव्वल मिन जिहतिल कम्मिय्यह कल उमूमी वल खुसूस। कभी कभार कम्मियत यानी तादाद में तशाबुह पाया जाता है। मिसाल के तौर पर सूरत तौबा की आयत नंबर 5 में कहा गया फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, कि तुम मुशरिकीन को कत्ल कर दो, ठीक है। अब ये आयत आम है या ख़ास है? अगर ये इसको उमूम पर महमूल किया जाए तो इसका मतलब होगा कि जो भी कोई मुशरिक होगा वो यानी वाजिबुल कत्ल होगा इस आयत की बुनियाद पर। लेकिन अगर इसको यानी ख़ास माना जाए किसी ज़माने में और यानी लोगों की एक ख़ास जमात के साथ, तो इसके मानी मुख्तलिफ होंगे। तो बज़ाहिर अगर आप देखेंगे फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, कि मुशरिकीन के साथ तुम लड़ो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लफ्ज़ भी तो ये है, यानी इसमें लफ्ज़ में भी तशाबुह पाया जा गया, और क्योंकि ये वाज़ेह नहीं है कि ये उमूम है या ये ख़ास है, ठीक है। लफ्ज़ और माना दोनों सूरतों में इसमें तशाबुह पाया जाता है कमियत के एतबार से। दूसरी आयत यानी दूसरी सूरत क्या है, मिन जिहतिल कैफियति कल वुजूब वन नुद्ब, कि कभी किसी कलाम में या हम कहेंगे किसी शरई हुक्म में की कैफियत में तशाबुह पाया जाता है, कि अगर कोई हुक्म दिया जा रहा है इसका करना वाजिब है, मंदूब है, यानी शरई अहकाम की हायरार्की में इसका क्या स्टेटस है। तो हम देखते हैं मिसाल के तौर पर यही सूरत निसा की आयत नंबर 3 में फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तो फन्किहू ये फ़ेल अम्र है, तो अम्र के बारे में हम यानी जो कवायद में बात कहते हैं कि अल अम्रु लिल वुजूब, क्या एक मुसलमान के लिए फिर 2, 3, 4 शादियां करना वाजिब है या मंदूब है? तो हम कहेंगे यहाँ पर लफ्ज़ और माना दोनों में तशाबुह पाया जाता है। तीसरी सूरत क्या है कि मिन जिहति ज़मान, किसी आयत का ज़माना वाज़ेह नहीं होता। तो ज़माने से ये मुराद है कि मिसाल के तौर पर नासिक वल मनसूख का मामला है, कि कभी ये तो हम जानते हैं कि ज़माने के एतबार से मनसूख आयत पहले नाजिल होती है और नासिक बाद में नाजिल होती है। तो अगर ये मालूम ही ना हो कि पहले कौन सी आयत नाजिल हुई है और बाद में कौन सी आयत नाजिल हुई है, तो जब नासिक मनसूख का सही इल्म नहीं होगा तो इस आयत की मुराद माना को समझने में दिक्कत पैदा हो जाएगी।
चौथी सूरत क्या होती है, मिन जिहतिल मकान, कि मकान वाज़िह नहीं होता। जैसे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 189 में कहा गया, वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, और ये नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहाँ से, यानी घरों के पीछे वाले हिस्से से। या कुरान में ये कहा, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, नसी जो है ये कुफ्र में ज़्यादती का एक मामला है। देखिए अब यहाँ पर अगर यानी जाहिलियत के आदात के बारे में इल्म ना हो तो इन दो आयात का समझना मुमकिन नहीं है। जो ये कहा गया कि घरों में पीछे से दाखिल होने में कोई नेकी नहीं है, बज़ाहिर इंसान क्या सोचेगा कि ये कौन समझेगा कि घरों में पीछे से दाखिल होना ये नेकी है। लेकिन ये जाहिलियत के ज़माने में अरबों के यहाँ एक यानी हज के अय्याम में, उम्रा के अय्याम में आदत थी। तो इस यानी हम कहेंगे इस आयत में जो मसला है मिन ज़ुहूरिहा, कि मकान का तज़किरा है, जगह का तज़किरा है, तो इसमें तशाबुह पैदा हो गया कि इससे क्या मुराद है। ठीक है। और पांचवी सूरत क्या है कि मिन जिहत शुरूत अल्लती यसिह बिहल फ़िअलु औ युफ़सिद का शुरूत सलाती वन निकाह। पांचवी सूरत क्या है कि कभी कभार हुक्म तो वाज़ेह होता है लेकिन उसकी शराइत वाज़ेह ना होने की वजह से माना के समझने में दिक्कत हो जाती है, तो हम कहेंगे कि तशाबुह शराइत के मालूम ना होने की वजह से पैदा हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ तक मैंने क्या बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने एक सवाल आपके सामने पहले बयान किया कि कुरान मुक़द्दस में अगर आयात नाजिल हुई हैं हिदायत के लिए, अगर कुरान मुक़द्दस में आयात नाजिल हुई हैं अरबी मुबीन में, तो हम ये क्यों कहते हैं कि कुरान की बाज़ आयत ऐसी हैं जिनके माना को समझने में बाज़ उलमा के नज़दीक यानी बाज़ समझ सकते हैं, बाज़ नहीं समझ सकते हैं, बाज़ के नज़दीक मस्तअसरल्लाहु बिइल्मी, अल्लाह के ही उस इल्म को जानने वाले हैं। तो इसको कभी कभार जनरलाइज किया जाता है। जनरलाइज इस सूरत में कि हम तशाबुह की हकीकत से वाकिफ़ नहीं होते। तो कभी कभार लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि कुरान नाजिल किया गया और इसमें ऐसी आयत हैं जिसका मानी कोई नहीं समझ सकता, तो इनको नाजिल करने की क्या वजह है। तो मुतशाबिह जब हम कहते हैं कोई आयत है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान ये समझे कि मुतशाबिह लफ्ज़ का इतलाक़ इन सूरतों पर होता है। अब इसमें जैसे मैंने बयान किया, बाज़ सूरतें ऐसी होंगी कि अल्लाह के अलावा कोई जान ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर क़यामत के अहवाल के बारे में इंसान कितना भी ज़हीन व फ़तीन हो, लेकिन क़यामत का वाक़या होना ये मुस्तक़बिल का एक वाक़या है जो कि इंसान जिसका अभी इदराक नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहेंगे कि ये मुतशाबिह आयात की वो किस्म है मस्तअसरल्लाहु बिइल्मिह, जिसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। दूसरी सूरत हमने देखी बाज़ जगहों पर कि जिसके लिए आपको लुगत और यानी मज़ीद अदिल्ला अगर मालूम हो तो तशाबुह रफ़ा हो सकता है। जैसे कुरू के बारे में हमने बयान किया, वफ़ाकिहतन व अब्बा के बारे में बयान किया, वल्लैल इज़ा असअस के बारे में बयान किया। तो ये यानी हम कहेंगे ज़ाहिरन तशाबुह तो है, लेकिन इस तशाबुह को रफ़ा करने की का इम्कान मौजूद है। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा हो सकता है कि मारिफतुत मुतशाबिह, अब कुरान की जो मुतशाबिह आयात हैं ये कैसे समझ सकता है इंसान, या इनको समझना मुमकिन है भी कि नहीं। अगर पिछली वाली जो बातें जहन में हो तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी वजाहत के लिए मैं बयान कर दूं कि उलमा के नज़दीक इख्तलाफ इसमें पाया जाता है कि क्या मुतशाबिह आयात का समझना मुमकिन है या नहीं है। तो अब इस इम्कान की बुनियाद पर मुतशाबिह यानी आयात को, या हम कहेंगे कि इनकी मारिफत की बुनियाद पर 3 सूरतों में तकसीम किया जाता है। पहली सूरत जो है वो है अल-मुतशाबिहुल हकीकी। अल-मुतशाबिहुल यानी कुरान की बाज़ आयात वो हैं जो कि हकीकत में मुतशाबिह है, मुतशाबिह जिनका इल्म मालूम करना मुमकिन नहीं है, जिन पर कुरान में नाजिल क्यों किया गया, ये ईमानियात का बाब है, या हम कहेंगे कि ये वो हकाइक हैं जहाँ तक इंसानी फ़हम को यानी हम कहेंगे कि रसाई हासिल नहीं है। जैसे कि यही मैंने बयान किया क़ियामुस्साअह का मसला है, तो ये मुतशाबिह है। इसी तरह हम कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यानी
صفات کا تذکرہ، جس کا انشاءاللہ اگلے باب میں تفصیلی یعنی ہم یہاں پر بات کریں گے، کیونکہ انسان ان صفات کی کنہ اصل حقیقت سے واقف نہیں ہو پاتا. یا اسی طرح یعنی متعدد معاملات ایسے ہیں جن میں ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے متشابہ ہے. کوئی علم آپ کو ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکتا. اس میں صرف انسان سے کیا ہے مطالبہ کہ وہ اس پر ایمان لائے. قیامت آئے گی، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. کب آئے گی ہمیں نہیں پتہ. قیامت کے بارے میں احوال بیان کیے گئے، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت کو معلوم کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ تشابہ یا متشابہ آیات کی ایک صورت یا ایک قسم وہ ہے جن کا یعنی علم معلوم کرنا، جن کی اصل حقیقت کو معلوم کرنا ممکن نہیں ہے. دوسرا کیا ہے، المتشابہ الاضافی. متشابہ الاضافی سے علماء ان آیات کو سے وہ مراد لیتے ہیں کہ جن کا یعنی معنی انسان بعض آلات یا بعض یعنی مزید ادلہ کی روشنی میں معلوم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر یہی فاطر السماوات والارض کا جیسے معاملہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دو لوگوں کو اس لفظ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو معنی معلوم ہو گیا. یعنی جب تک اس لفظ کے بارے میں وضاحت معلوم نہیں تھی تب تک یہ ہم کہیں گے کہ اس میں تشابہ پایا گیا، لیکن جب اس تشابہ کو رفع کرنے کا ذریعہ معلوم ہو گیا تو وہ تشابہ ختم ہو گیا. اور تیسری تشابہ کی صورت کیا ہے، المتشابہ الاضافی. یعنی متشابہ کی وہ صورت جس کو معلوم کرنے کے لیے انتہائی زیادہ علم درکار ہے. جسے قرآن نے خود کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. جن علماء کے نزدیک اس آیت میں واو العطف ہے تو ہم کیا کہیں گے معنی کہ متشابہ آیات کی مراد کو اللہ اور علم میں رسوخ رکھنے والوں کے بغیر کوئی نہیں جانتا. ہم کہیں گے متشابہ آیات کی وہ ایک سطح ہے جن کو معلوم کرنے کے لیے علم میں رسوخ کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ عام کتابوں کو کھول کر، ڈکشنری کو کھول کر معلوم نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر یعنی ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں. ہم نے کیا ابھی تک دیکھا، دو دروس ہیں. میں اس موضوع کو تھوڑا یعنی نسبتاً کم رفتار سے پڑھا رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھار اس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو اس میں یعنی اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے حوالے سے بات آئے گی تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو ہم نے ابھی تک یعنی اس درس میں اور گزشتہ درس میں کیا دیکھا، ہم نے دیکھا یعنی ہم نے پڑھا اس درس میں کہ المحکم اور متشابہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم نے الاحکام العام التشابہ العام، الاحکام الخاص التشابہ الخاص اس کو دیکھا. اس کے بعد میں نے آج کے درس میں دو چیزیں بیان کی ہیں بنیادی طور پر. ایک کہ تشابہ جب ہم کہتے ہیں اس کی کیا کیا اقسام ہیں، کن کن صورتوں میں قرآن میں متشابہ آیات پائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کیا متشابہ آیات کو معلوم کرنا ممکن ہے یا نہیں. اس میں نے یہ بات بیان کی کہ تین صورتیں ہیں. ایک یعنی تشابہ الحقیقی، وہ متشابہ آیات کی وہ قسم جن کی حقیقت کو معلوم کرنا ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. اور اس کے بعد المتشابہ الاضافی اور المتشابہ الخفی. تو یہ جو آج کا درس ہے تو اس میں بنیادی طور پر یہ ڈاکٹر فہد الرومی صاحب کی کتاب دراسات فی علوم القرآن سے ماخوذ ہے. تو مزید تفسیرات کے لیے آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے باب المحکم والمتشابہ کو. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یعنی نظم کی جانب آئیں گے جو ناظم حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، اور ان کے نزدیک راجح آرا کیا ہے تو اس کو دیکھیں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں
ہے چمن